Number 2, the way Sun is a leader, Moon is more of a follower. Is influenced by Jupiter. So that person usually tends to be very tall and very heavy. Number 4 का ये है कि grudges hold करते हैं, they can be rigid at times. Then is a combination of 1 and 0. So basically, significance. Moving on to Moon. Moon is the exact opposite, kind of opposite of that. So number 2. Number two. You know, the way Sun is a leader, Moon क्या है? Moon is more of a follower. Moon is more of a follower. He's more emotional, empathetic. He wants to take people together. At the same time, उसके negative traits ये है कि थोड़ा timidness रहता है अपने में. You know, forthright नहीं है, initiative ज़्यादा नहीं है. And of course, such people at times could also be, you know, deceptive, lying. Such traits can also come into those people because Moon. You know, Moon is changing. It's a watery planet. और उनके mood swings बहुत होते हैं, emotional, and you know, such traits do come, but they are on the softer side, unlike the Sun, which is more intense. So that is about Moon, and we need to be very cautious here because you know, people should not you know, just listen to such analysis and think that they, you know, if somebody's Moolank is 2. That, you know, all these predictions are going to exactly match because, you know, numerology is a vast शास्त्र. If हर एक नंबर का अगर हर एक पे एप्लीकेबल डायरेक्टली हो जाता तो हम हर 9 में से मतलब एक इंसान कॉमन आपके लाइफ में, वैसा नहीं होता. But I'm just telling you, this is the foundational theme. Right. On this foundational theme, multiple other factors build up, and the personality of a person is a, you know, very diverse complex of things. Right. So ये उसके foundational traits हैं. These are not the, you know, complete description of a person's persona. Number 3 is the number of Jupiter. Okay, so Jupiter is, as we know, the Guru, the Dev Guru. So Guru, like the commonest ideas that we associate with the Guru: wisdom, originality, creativity. Okay, you know, flair for teaching people. वैसा है. So all those traits do come into play into that person. If the influence of number 3 is too much, because Jupiter usually has a tendency to make you obese. Obesity भी आता है. That's particularly what we see in astrology. If somebody's Lagna is influenced by Jupiter, if Jupiter is sitting in that Lagna and is not badly afflicted, so that person usually tends to be very tall and very heavy usually. And the personality of that person is also quite heavy. You know, gravity बहुत ज़्यादा होता है उनमें. So Jupiter gives all of that things, but numerology में the connotations are little different. Astrology को आप directly उस पर superimpose नहीं कर सकते because number 3 Jupiter in numerology, such persons are usually also very happy-go-lucky types. They want to enjoy life. ऐसा नहीं है कि वो strict रहेंगे, rigid रहेंगे. But गुरु है तो गुरु में भी अभी कुछ negatives होते हैं. Like आप अगर गुरु को कहो कि आपसे बेहतर वो सिखाते हैं तो उसको तो jealousy होगी थोड़ी. थोड़ा शॉर्ट टेम्पर्ड कभी कभी हो सकते हैं ऐसे कंपैरिजन्स के केस में, जेलसी भी आ सकती है. सो या बेसिकली द जुपिटर्स यू नो पर्सनालिटी रिफ्लेक्ट्स इन सच पीपल. नंबर 3 मूलांक में. भाग्यांक में वो तो हम बाद में आएंगे डिस्कशन पे उसके. नंबर 4 इज द नंबर ऑफ राहु. बेसिकली राहु इज समथिंग जहाँ पे यू नो एस्ट्रोलॉजिकल इंटरप्रिटेशंस and numerological interpretations. These two are slightly differ, particularly when it comes to Chaldean numerology. Rahu in number 4 in numerology, it's considered a very hard-working number and it's a very very ethical number. Usually हम राहु को criminal activities के साथ associate करते हैं in astrology. But number 4 usually is a very, you know, कुछ लोग होते हैं ना ऐसे एकदम शेड्यूल में बंध के चलेंगे, एकदम कट टू कट काम होना चाहिए लॉ के हिसाब से, लॉ अबाइडिंग. टाइम 10 बजे बोला है तो 10 बजे पहुंचेंगे, उस किस्म के होते हैं. सो दीज आर वेरी गुड ट्रेट्स विच रियली हेल्प देम अचीव देयर गोल्स एंड ऑल ऑफ दैट. प्लानिंग में अगर आपको कोई चाहिए, दिस इज अ सिमिलरिटी बिटवीन एस्ट्रो एंड न्यूमेरो. राहु जहाँ भी हो, दैट पर्सन इज वेरी गुड एट प्लानिंग. राहु शुड बी गुड. राहु अगर एफ्लिक्टेड है चार्ट में आपके, सो ही इज नॉट गोइंग टू गिव द गुड रिजल्ट्स. बट अ पर्सन विथ गुड राहु or under the influence of Rahu is a very good strategist. He may not be a very good implementer. क्योंकि राहु के पास सिर्फ सर है, उसके पास बॉडी नहीं है, तो वो सिर्फ सोचता है. अभी उसको सपोर्ट चाहिए दूसरे प्लैनेट्स का in order to implement his thoughts, his plans. लेकिन he is a very good strategizer.
ऑफ कोर्स हर नंबर के अपने नेगेटिव रिजल्ट्स भी होते हैं. सो नंबर 4 का ये है कि ससेप्टेबल टू नेगेटिविटी एट टाइम्स. उनको अगर किसी ने कुछ कहा और उसको लग गया तो ग्रजेस होल्ड करते हैं, वो काफ़ी ग्रजेस होल्ड करते हैं. सेकेंडली दे कैन बी रिजिड एट टाइम्स. थोड़े बिकॉज दे आर लॉ अबाइडिंग पीपल, स्ट्रेटेजी अबाइडिंग पीपल, थोड़े हार्ड हेडेड टाइप के होते हैं, तो उनको चेंज करना थोड़ा मुश्किल है. तो वो रिजिडिटी के वजह से एट टाइम्स दे गेट इनटू ट्रबल. सो दैट इज द स्टोरी ऑफ नंबर 4. Number 5 is ruled by Mercury. Okay, Mercury, as we know, is the planet of intelligence. Mercurian traits basically like they are. Mercury is also related to multitasking. So Mercury, मतलब जहाँ पे influence है Mercury का, that person is interested into a lot of fields. कई सारे fields में उसको interest भी होगा, उसको उसमें knowledge भी होगा. So they have to take care that they don't become kind of jack of all trades kind of thing. They have to narrow down something. We'll see that like even if your life path is 5, so you have a difficult time at times to focus. Attention जो है काफ़ी चीज़ों में distract हो जाता है. So you are not able to zero down on one thing. But 5 is a very good life path number otherwise. Okay. In terms of Mulang, these people like to travel, like to speak, like to make friends. Mercurian जो traits हैं वो उनके अंदर होता है. इंटेलिजेंट लोग भी होते हैं, मल्टीटास्कर्स होते हैं. Among the negatives of these people, they have to be particularly if they have in their birth chart, I'm talking astrologically, अगर उनके birth chart में मून और मरकरी का कंजक्शन है तो particularly these 5 number people, they have to be very careful about not acquiring addictions. अच्छा. Because addictions, gambling, all those things, इन सब में उनका रुझान जा सकता है नंबर 5 का. And of course multiple friends में बनाते हैं, multiple affairs भी हो सकते हैं उनके. So it all depends on the strength of your planets. लेकिन these are the possible the possibilities that exist. Number 6 is the number of Venus. Okay, so Venus, as we know, Venus is the planet of everything about love, romance, sex, जो भी हो. Numerologically, Venus जो है, the person influenced by Venus is going to be nurturing, very nurturing. वो लोगों को एक साथ रखना, लोगों को केयर करना, ये सब में बहुत ज़्यादा मतलब फैमिली ओरिएंटेड टाइप है. यू कैन गेट द पिक्चर कि कोई फैमिली में है, वो सबका ध्यान रखेगा, इसका ध्यान रखेगा, उसका ध्यान रखेगा. उसमें कभी कभी उसका अपना भी लॉस हो जाता है. द नेगेटिव थिंग अबाउट वीनस इज दैट इसी चक्कर में दे एक्सपेक्ट अ लॉट ऑफ पीपल, एक्सपेक्ट अ लॉट फ्रॉम पीपल. वो एक्सपेक्टेशंस मोस्ट ऑफ द टाइम्स आर नॉट मेट एंड वो उनका हार्ट ब्रेक होता है तभी. और उसी चक्कर में करियर वगैरह भी सैक्रिफाइस हो सकता है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट समबडी विथ नंबर 6, स्पेशली लाइफ पाथ 6, चूजेस द राइट प्रोफेशन फॉर देम. लाइक आर्ट्स में जो भी वीनस के फील्ड्स हैं, आर्ट्स हो गए, सिंगिंग हो गया, डांसिंग हो गया, कोई भी कंप्यूटर्स IT रिलेटेड फील्ड हो गए, ओके, इंटीरियर डिज़ाइनिंग हो गया, जो भी वीनस से रिलेटेड, ऑटोमोबाइल्स का सेक्टर हो गया. इट्स इंपॉर्टेंट दैट यू चूज द प्रोफेशन रिलेटेड टू दैट. We are at number 6. Now we are at number 7. Okay, so 7 is the number of Ketu. Ketu is another shadow planet, the counterpart of Rahu. So Ketu is number 7 are highly intuitive people. ये वो लोग हैं जो मतलब अपने आप में मगन रहने वाले लोग हैं. Okay, introvert type के, जो मतलब they are basically on a higher spiritual plane or they are aspiring for a higher spiritual plane. इतना लोगों से मिलना जुलना उनको पसंद नहीं होता. Wisdom वाला नंबर है. विजडम तो है, बट सी इट्स नॉट अप्लाइड विजडम. अप्लाइड विजडम इतना नहीं है. दे आर बेसिकली लुकिंग फॉर द ट्रूथ, सर्च फॉर ट्रूथ. सो ये पार्टीज में जाना, गप्पे मारना, ये इनको इतना पसंद नहीं होता. इंट्रोवर्टिश टाइप के होते हैं, या तो बहुत ज़्यादा बोलेंगे और या फिर बहुत कम बोलेंगे. कंपनी अच्छा मिल गया तो दे विल बी एज एफ्यूसिव एज एनीथिंग. ऐसा है. ओके, सो दैट इज़ हाउ इट इज़. तो प्रैक्टिकल टच थोड़ा कभी कभार आपका कम हो सकता है उसमें. even though 7 number people also like to travel. 5 and 7, these two numbers are fond of traveling. Okay, so Ketu ke, like if we talk about the life path as well, so these people would at times they'll drift into occupations like academics में हो गया, philosophy में हो गया, okay, which do not give a lot of do not promise a lot of material gains. तो तुम्हारा रुझान उस तरफ होगा और तुम उन्हीं फील्ड्स में जाओगे जहाँ से ज़्यादा पैसे नहीं आते.
तो ऑफ कोर्स अभी इस ज़माने में तो दैट्स अ वेरी ट्रबलसम proposition, right? So that is something they have to guard against. Number 7. But it's a highly spiritual number. So 7 के बाद जो भी numbers हैं 7, 8, 9 जो है these are spiritually inclined numbers but in very different ways. 8 नंबर जो है शनि का नंबर है, सैटर्न का नंबर है. तो सैटर्न इज नोन फॉर मटेरियलिज्म, पैसे कमाना, पावर, अपने को सब चाहिए, वो सब चाहिए, फ्यूचर सिक्योरिटी. ओके, सो दोज आर द एम्बिट ऑफ सैटर्न. लेकिन एट द सेम टाइम सैटर्न इज ऑल्सो वेरी इंट्यूटिव. सैटर्न जो है वो स्पिरिचुअल भी है, एज आई टोल्ड 7, 8, 9 स्पिरिचुअल है. सैटर्न का अपना अलग स्पिरिचुअलिटी है. सैटर्न स्पिरिचुअलिटी इज नॉट अ स्पिरिचुअलिटी टू बी डिस्प्ले टू द वर्ल्ड. वो अपने आप में रखता है, लेकिन भाई बहुत कहते हैं ना यार, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, वो टाइप का ये रहता है. तो एट टाइम्स दीज 8 नंबर पीपल कैन ऑल्सो बिकम अ लिटिल सेल्फिश, अ लिटिल कोल्ड, नर्वलेस टाइप ऑफ पीपल, जिनको दूसरों के इमोशंस का कदर नहीं होता. लेकिन या दैट्स द चैलेंज, दैट्स समथिंग दे हैव टू गार्ड अगेंस्ट. नंबर 9, द फाइनल नंबर, इसको कंसिडर द बेस्ट नंबर एक्चुअली. इन सर्टन वी कांट से कि एक नंबर खराब है, एक नंबर बुरा है. बेसिकली हर नंबर में ही अच्छी ट्रेड्स हैं, किसी कुछ बुरी ट्रेड्स हैं. लेकिन 9 नंबर इज बिकॉज इट्स अ सम ऑफ ऑल नंबर्स, एंड में आता है, तो इट्स कंसिडर्ड अ वेरी गुड नंबर. इट्स द नंबर ऑफ मार्स. तो ये बेसिकली आपको एक सोशल एप्टीट्यूड देता है, फिलैंथ्रोपी, लोगों की मदद करना, ओके, समाज में नाम कमाना. लोगों को मार्स का कैसा है, इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड दीज नंबर्स, बेसिकली यू हैव टू अंडरस्टैंड द प्लैनेट्स. सन इज द किंग एंड मार्स इज द कमांडर. ओके, किंग का क्या है, किंग को अपना काम किसी से करवाना है. मार्स इज लीडिंग एन आर्मी, वो किंग से ऑर्डर्स लेता है. लेकिन मार्स हैज वन ट्रेट विच सन डजंट हैव, दैट इज सैक्रिफाइसिंग हिमसेल्फ फॉर हिज फेलो आर्मी मैन. वो हमेशा सामने खड़ा रहेगा. जो तूफान आएगा ना, उसको पहले वो झेलेगा, बाद में उसके लोग झेलेंगे. सो दिस मेक्स देम वेरी नर्चरिंग. लेकिन एट द सेम टाइम वो मार्स है, इसलिए वो काफ़ी एट टाइम्स दे कैन गेट वेरी एग्रेसिव और ऑब्सेसिव भी हो सकते हैं कुछ चीज़ों को लेके. बट अदरवाइज नंबर 9 इज़ अ वेरी गुड नंबर. इन लाइफ पाथ 9, जो मैंने कहा था 1, 5, 9 इज रियली गुड नंबर्स. लाइफ पाथ 9 इज़ द बेस्ट नंबर एक्चुअली टू बी ऑफ अ लाइफ पाथ, बिकॉज आपको फाइनेंसेस, फॉर्चून, सोशल सपोर्ट, मतलब हर तरफ से आपको सपोर्ट मिलता है उसमें. एंड आपको जितना मिलता है आप उतना देते हैं सोसाइटी को. सो नंबर 9 इज कंसिडर्ड द बेस्ट नंबर इन टर्म्स ऑफ लाइफ पाथ. एंड ऑल्सो मूलांक तो खैर नेचर है, हर एक का अपना ये रहेगा, फ्लॉज रहेंगे, अपने शॉर्टकमिंग्स रहेंगे. सो दैट्स बेसिकली व्हाट द नंबर्स आर. वी हैव 1 to 9 नंबर्स रिप्रेजेंटिंग द 9 डिफरेंट प्लैनेट्स. And anything special about उसके बाद वाले numbers, like say for example 10 is a combination of 1 and 0. तो So उसका basically कुछ significance?